हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका टीचर, केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम द केमिस्ट्री वाइब्स, अनुराग। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं वीडियो विच इज रिलेटेड टू द एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव। जितने भी डाउट्स है आपके इस चैप्टर में सब क्लियर हो जाएंगे। इट इज अ पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड्स। लेट्स स्टार्ट विद इट वन बाय वन, वी कैन अंडरस्टैंड। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। The first point we are going to discuss today is organic compounds having carboxylic group. Which is carboxylic group? First you have to understand that is C double bond O OH are called carboxylic acids. उन्हें क्या बोला गया था? Carboxylic acids. अगर हम जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं तो इट इज CnH2n CnH2nO2. CnH2nO2 is the general formula of monocarboxylic acids. monocarboxylic acids, मोनो मतलब सिंगल जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। वहीं अगर हम बात करते हैं कार्बोनिल ग्रुप्स की, तो कार्बोनिल ग्रुप्स क्या था? नंबर 2 पॉइंट आप लिख लीजिए, दैट इज C डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है आपका? OH. दिस इज नोन एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं दोज आर नोन एज बेसिकली फैटी एसिड्स। क्या बोला जाता है इन्हें? फैटी एसिड्स। इनको कहा जाता है फैटी एसिड्स। कॉमन एग्जांपल अगर आप देखें तो CH3COOH, दैट इज इथेनोइक एसिड। सिमिलरली ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, देयर आर सो मेनी अदर examples of it. Okay, so we are mainly talking about carboxylic acid and its formation today. This group is called carbonyl group and this is, you know about that, hydroxyl group. OH is your hydroxyl group. एक नेमिंग कर लीजिए। सपोज यू हैव 1 2 3 4 COOH, 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 COOH. What will be the naming of this compound? Can you name it? So it is 10 1 2 3 4 tetra carboxylic acid. Okay, the second thing you have to remember, COOH here, OH and NH2. Can you name it? So the functional group is, the main functional group is this. So we will write down, then it will be 1 2 3 4 5 6, right? So it will be 3 amine groups, so 3 amino, 2 hydroxy, because of the presence of OH group, 2 hydroxy. It is cyclic compound, so it is cyclohexene 1 carboxylic acid. Cyclohexene 1 carboxylic acid. Because we are not counting C of the carboxylic acid in the chain, so we have to write down carboxylic acid. Remember that when you are not counting the COOH in the chain, main chain, so you have to write down its full name, carboxylic acid, otherwise oic acid. You can also write down some acids like SCOH, right? It is also called formic acid. Why? Because it is from the, you know about ant release the formic acid, so it is coming from there. Then we have C3, अगर हम कॉमन नेम में लिखते हैं S7COOH. This is butanoic acid which is also called butyric acid.
So these are some names of it. Let's discuss about the isomerism shown by the acids. Isomerism. So acids show mainly chain isomerism and functional isomerism. चेन आइसोमर्स तो सिंपल बात है. फंक्शनल आइसोमर्स वो ईस्टर के साथ शो करते हैं, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप के साथ, एंड हाइड्रोक्सी ऑक्सीडेंस और साइक्लिक ईथर्स के साथ. वन बाय वन समझेंगे हम आगे. या साइक्लिक ईथर, इन सब के साथ ये फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से. जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लिया हमने, C2H4O2 का कंपाउंड का फॉर्मूला है. इससे आप क्या बना सकते हो? CH3COOH, दिस इज योर ब्यूटेन इथेनोइक एसिड. यू कैन ऑल्सो मेक इट HCOOCH3. व्हाट इज दैट? यू कैन ऑल्सो मेक CHO, CH2OH. This is your hydroxy carbonyl group, hydroxy carbonyl group. And last but not the least, we can also make like that CH2, CHOH, like that. So this is your hydroxyoxyrenes, right? So these are some common example. Let's discuss about some valuable facts regarding valuable facts. बच्चा अभी हम सब स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं. Later on we will go with the preparation method and chemical reactions of acid and its derivative, mainly about carboxylic acid, which is given in the book. Okay, so अभी just starting है, समझो. This is the first video, so just write down ROOH प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट अगर हम कर देते हैं, यहाँ पे एफरवेसेंस आता है CO2 का. एफरवेसेंस ऑफ CO2. एफरेंसेस ऑफ CO2. ठीक है, ये टेस्ट ऑफ NH कार्बोक्सिलिक एसिड भी माना जाता है. यहाँ पे ये बात याद रखना है, इसको एक्वस फॉर्म में आपको लेना है. नेक्स्ट, इसमें आप सम कॉमन एग्जांपल देख सकते हो. बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो RCOH का बहुत हाई होता है कंपैरिजन टू ROH और RCHO. ठीक है, या RCO R' सबसे ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट इसका, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा एक्सटेंड तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है कंपैरिजन टू अदर ग्रुप्स, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है. ठीक है, एक और बात याद रखना है आपको, HCOOH है जो, वो डाइमर बनाता है वेपर फेज में. डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल कंबाइन, तो डाइमर इन वेपर फेज. और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है आपका, लिक्विड में किस में कन्वर्ट हो जाता है? पॉलीमर फॉर्म में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ये. इट कन्वर्ट्स इनटू पॉलीमर इन द लिक्विड. अगर हम जब इसमें नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो जो SCOH है एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है. पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए टोलेंस रिएजेंट को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है. और फेलिंग सॉल्यूशन एंड HgCl2 को भी क्या कर देता है? ये रिड्यूस कर सकता है. फेलिंग सॉल्यूशन एंड
HgCl2। इन सबको क्या कर देता है ये, रिड्यूस। तो रिडक्शन का काम करता है ये, इट रिड्यूस द टॉलरेंस रिएजेंट इन सॉल्यूशन। सिंपल सा टेस्ट है, RCOH को आप NaHCO3 में डालो, CO2 का एफरवेसेंस आएगा, सो इट इज टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पॉलीमर को अगर आप, जैसे आपके पास ये कंपाउंड है CH3COOH, अगर आप लिक्विड फेज में लेके जाएंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू पॉलीमर एज आई टोल्ड, और अगर आप इसको ड्राई फॉर्म में रखेंगे बेंजीन की प्रेजेंस में तो इट विल कन्वर्ट इनटू डाइमर्स बना देगा। ये कुछ बेसिक था इस टॉपिक के बारे में। अब हम सीधा स्टार्ट जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस को। सो पहला जो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज बाय द हाइड्रेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव, बाय द हाइड्रेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। सो इसमें हमने क्या करना है, डाइल्यूट आप ले सकते हो, या तो आप डाइल्यूट एसिड ले लो और डाइल्यूट अल्कलाइंस ले लो। फॉर एग्जांपल दिस इज RC डबल बॉन्ड OCl, दिस इज क्लोराइड, राइट, एसिड डेरिवेटिव इट इज एसिड क्लोराइड। यहाँ OH क्या लगा हुआ है, Cl, H2O gives RCOH, प्लस साथ में बाहर निकल जाएगा HCl। तो ये एक हो गया एसिड क्लोराइड। दूसरा एसिड डेरिवेटिव हो सकता है अमाइड। अमाइड भी आपने सुना होगा, बहुत फेमस होता है, इसको बोलते हैं अमाइड। अमाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल मिलाओ, बन जाएगा RH, साथ में क्या बाहर निकल जाएगा, अमोनिया गैस। या फिर आप इसमें थर्ड यूज कर सकते हो ईस्टर, दैट इज कॉल्ड एसिड डेरिवेटिव, RC डबल बॉन्ड O, OR प्लस H2O gives RCOOH प्लस, इसका प्रोडक्ट आपने सुना होगा एस्टरिफिकेशन का, ये रिवर्स प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम में रहता है ना एस्टरिफिकेशन में। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट को बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। कौन क्या बोलते हैं इसे, एसिड एनहाइड्राइड, जो कि आपने प्रीवियस वीडियोस में काफी देखा होगा। इट इज नोन एज एसिड एनहाइड्राइड, RCO होल ट्वाइस O ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो एसिड एनहाइड्राइड। सो इसमें अगर हम पानी मिला देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काली मीडियम, इट विल गिव 2 moles ऑफ RCOOH, ठीक है। तो पहला तो ये मेथड हो गया अपना easiest method to prepare. The next method number 2 we are going to discuss is by the hydrolysis. By the hydrolysis of cyanides. अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर साइनाइड क्या है, तो पता होना चाहिए। नाउ पता होना चाहिए आपको RCN को साइनाइड कहते हैं। तो ये ट्रिपल बॉन्ड है N, इसमें भी आप HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होगा, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करो, इट विल गिव सीधा आपको एसिड प्लस NH3 गैस रिलीज हो जाएगा। चाहो तो एग्जांपल लिख लो इसका, CH3CN प्लस 2 moles ऑफ H2O in the presence of what, dilute HCl gives CH3COOH, साथ में अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगा। सो दिस इज द मैग्मा, थोड़ा सा होता है, आप इसको याद रख सकते हो। उसमें पहले H+ का अटैक होगा और फिर उसके बाद इंटरमीडिएट्स बनके ये फाइनली होता है। थर्ड आप इसमें याद रखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या याद रखना है आपको, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या करना है आपको, RMgX ले लेना है, RMgX, इसमें आपने ऐड करना है CO2, इट विल गिव द इंटरमीडिएट RC डबल बॉन्ड O, OMgX। अब यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस करने पर, HO पानी मिलाने पर, हाइड्रोलिसिस करने पर ये दे देगा आपको RCOOH प्लस साथ में जो बाय प्रोडक्ट बनता है ग्रिग्नार्ड का, वो बन जाएगा। सो दिस इज द रिएक्शन, यू कैन राइट डाउन, R के जगह CH3 लिख के एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलोफॉर्म्स एंड अदर रिएक्शंस। सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ।